Student, consider an electromagnetic wave in free space with no electric charges or currents present. Given that intensity of magnetic field H suffix x equal to H suffix y equal to 0 and capital H suffix z equal to B suffix z over mu 0. B suffix z is z component of magnetic flux density or magnetic field or magnetic induction vector. Mu 0 is permeability of free space or vacuum. Capital H suffix z, z component of intensity of magnetic field is equal to capital A sin alpha y cos omega t. Omega angular frequency and alpha positive constant, omega positive constant. Answer the following. Show that this represents a superposition of propagating plane waves. B part is determining the accompanying electric field vector E. Capital E stands for intensity of electric field or electric field strength. C part is calculate the Poynting vector and the energy density averaged over a time period of the wave. फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं. कैपिटल एच सफिक्स जेड इज गिवन टू मी. ये स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर. ये फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a plus b plus sin a minus b. Therefore capital H suffix z equal to हाफ ब्रैकेट में कैपिटल A into this plus कैपिटल A into this. अब इसमें y और t दोनों के साइन सेम है. अगर y और t दोनों के साइन सेम है तो दिस रिप्रेजेंट्स प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग टू द लेफ्ट अलोंग y एक्सिस, यानी माइनस इंफिनिटी ऑफ y एक्सिस लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे y और t के साइन सेम है. t के साथ ओमेगा होता है और y के साथ अल्फा होता है. ओमेगा के पास टाइमिंग इंफॉर्मेशन है, अल्फा के पास स्पेशियल इंफॉर्मेशन है. अल्फा एक तरीके का वेव प्रोपेगेशन फैक्टर है. साइन का आर्ग्यूमेंट हमेशा डायमेंशनलेस. ओमेगा की यूनिट सेकेंड इनवर्स, अल्फा की यूनिट मीटर इनवर्स. और इसमें y और t दोनों के साइन अपोजिट हैं. जाहिर सी बात है कि ये भी प्लेन वेव है लेकिन प्रोपेगेटिंग टू द राइट, क्योंकि y और t के साइन जब भी अपोजिट होते हैं तो वेव इज प्रोपेगेटिंग टू द प्लेन वेव इज प्रोपेगेटिंग टू द राइट बट अलोंग y एक्सिस. अब तो therefore we have proved that this capital H suffix z is representing superposition of propagating plane waves. A B part है determining the accompanying electric field capital vector E. So capital E must be perpendicular to both y axis and z axis. Why? Because x part of magnetic field is absent, y part of magnetic field is absent, only z part of magnetic field is there. Or wave is propagating along right y axis or left y axis. Propagation direction is along y axis, magnetic field is along z axis. Therefore electric field must be perpendicular to both z as well as y. So capital E, which is perpendicular to both y axis and z axis, that is only x component of electric field. और हम सब जानते हैं what is the relation between magnetic field and electric field in electromagnetic wave, that is capital B equal to capital E over little c. Capital B यहाँ पे z component, electric field x component divided by little c for a propagating plane wave. So for the wave propagating towards negative y axis, तो कैपिटल E सफिक्स x इक्वल टू लिटिल c कैपिटल B सफिक्स z, यानी लिटिल c, और B सफिक्स z इज म्यू 0 कैपिटल H सफिक्स z. कैपिटल H सफिक्स z का ये एक्सप्रेशन है और इन दोनों में से वो वेव पिक करिए विच इज प्रोपेगेटिंग टू द लेफ्ट अलोंग y एक्सिस. तो वो ये वाला पार्ट है. तो कैपिटल H सफिक्स z का ये पार्ट लिख लीजिए
यानी कैपिटल A/2 साइन ब्रैकेट में अल्फा वाई प्लस ओमेगा टी, साथ में लिटिल सी म्यू जीरो. सिमिलरली फॉर द वेव प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स right of y axis यानी प्लस इंफिनिटी, दैट विल बी कैपिटल E सफिक्स x इक्वल टू लिटिल c म्यू जीरो और h सफिक्स z का ये कंपोनेंट कैपिटल A/2 साइन ऑफ अल्फा y माइनस ओमेगा t. नाउ आई एम टू वेरीफाई c पार्ट. कैलकुलेट पॉइंटिंग वेक्टर. सिंस द ओरिजिनल वेव इज स्टेशनरी देयर, अभी मैं आगे करवा रहा हूं. तो स्टूडेंट सी पार्ट में हम बता रहे थे, सिंस द ओरिजिनल वेव इज स्टेशनरी देयर इज नो प्रोपेगेशन इन एनी डायरेक्शन on the average of energy, so the time average pointing vector p average is equal to vector E cross vector H average equal to 0. पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट आप जानते हैं एनर्जी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यानी वॉट पर मीटर्स के पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट होते हैं. तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट. अब ये जीरो कैसे है इसकी मैं डिटेल बता रहा हूँ. स्टार्ट फ्रॉम मैक्सवेल डिफरेंशियल इक्वेशन. मैक्सवेल की आप जानते हैं 4 इक्वेशंस होती हैं और ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है. डेल क्रॉस वेक्टर इक्वल टू माइनस कर्ली टी एक्टिंग ऑन वेक्टर बी, बी सफिक्स जेड इज म्यू जीरो एच सफिक्स जेड. हम सब जानते हैं वेक्टर बी यहाँ पे बी सफिक्स जेड इंटू के कैप है. के कैप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि एक्स और वाई तो जीरो दिए हैं क्वेश्चन में, और बी सफिक्स जेड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में एच सफिक्स जेड दिया हुआ था. क्वेश्चन में एच सफिक्स जेड हमें दिया हुआ है कैपिटल ए साइन अल्फा वाई कोस ओमेगा टी. तो ऑब्वियस है बी सफिक्स जेड क्या आ जाएगा म्यू जीरो. कैपिटल एच सफिक्स जेड का ये वैल्यू रख दिया. ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी इज टाइम पीरियड टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड. तो वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू बी सफिक्स जेड के कैप का मॉड इज 1. अब ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे जेड कंपोनेंट लिया डेल क्रॉस वेक्टर ई सफिक्स जेड, जो कि हम ये जानते हैं ये डेल इज 3 डायमेंशनल डायरेक्शनल डिफरेंशियल ऑपरेटर. आई कैप कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली जेड. ऐसे वेक्टर ई इज इक्वल टू आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड. जब आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और जेड कंपोनेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा कर्ली एक्स ई वाई माइनस कर्ली वाई ई एक्स. क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपने देखा था सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई सफिक्स एक्स ही है, अभी मैंने बताया था. तो ये ई वाई तो है नहीं, तो माइनस कर्ली वाई एक्टिंग ऑन ई सफिक्स एक्स इन दिस प्रॉब्लम. तो डेल क्रॉस वेक्टर ई सफिक्स जेड के प्लेस पे हमने लिख दिया माइनस कर्ली वाई ई सफिक्स एक्स. अब इज इक्वल टू ये माइनस और कर्ली टी बी वेक्टर और बी वेक्टर इज का मॉड इज बी सफिक्स जेड. तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. एक माइनस पहली है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आप देख रहे हैं ओमेगा आ जाएगा. और ये म्यू जीरो कैपिटल ए, इसका डिफरेंशिएट करके ओमेगा साथ में आया था और साइन ओमेगा टी आया था. ये साइन अल्फा वाई, और क्योंकि मैं इस वक्त इसको मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूँ तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ई विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ई सफिक्स एक्स क्या आ जाएगा म्यू जीरो कैपिटल ए ओमेगा साइन अल्फा वाई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई जो है दैट इज माइनस कोस अल्फा वाई ओवर अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, और ये साइन ओमेगा टी. पॉइंटिंग वेक्टर इज वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी.
क्योंकि ये h जो है दैट इज वेक्टर b डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर e की जगह हमने लिख दिया e सफिक्स x i कैप क्रॉस, और वेक्टर b की जगह हमने लिख दिया b सफिक्स z इंटू k कैप। सो वेक्टर p इज इक्वल टू, अब मेरे पास e सफिक्स x भी है और b सफिक्स z भी है, दोनों की मैंने वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर दी है, और i कैप क्रॉस k कैप इस वेक्टर ट्राइड से, i कैप क्रॉस k कैप इज माइनस j कैप, और तो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो कैपिटल ए ओमेगा और अल्फा, ये म्यू जीरो कैपिटल ए 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर, ऐसे 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा वाई, और ये 2 इंटू 2 4, और ये अल्फा एज इट इज, और ये म्यू जीरो स्क्वायर, और ये कैपिटल ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट सो टाइम एवरेज यानी वेक्टर पी का एवरेज, वैसे तो मैंने ये लिखा हुआ इंटीग्रल वेक्टर पी डी ब्रैकेट ओमेगा टी विद इन लिमिट 0 से 2 पाई, और इंटीग्रल डी ब्रैकेट ओमेगा टी विद इन लिमिट 0 से 2 पाई। ये कैसे आया, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 बाई कैपिटल टी इंटीग्रल डी लिटिल टी विद इन लिमिट 0 से कैपिटल टी इज 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा इधर चला गया, और ये चूंकि ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की लोअर लिमिट 0, ओमेगा टी का अपर लिमिट 2 पाई। सो टाइम एवरेज वेक्टर पी इस तरीके से मैंने लिखा, इंटीग्रल वेक्टर पी डी ओमेगा टी विद इन लिमिट 0 से 2 पाई ओवर 2 पाई को इस तरीके से लिख सकते हैं डी ब्रैकेट ओमेगा टी 0 से 2 पाई, क्योंकि सोल्व करके 2 पाई ही आएगा। और ये इंटीग्रल वेक्टर पी ये रख दिया डी ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी वही साइन 2 ओमेगा टी, बाकी कांस्टेंट चीजें बाहर ले ली, और ये 2 पाई एज इट इज, और डी ओमेगा टी है तो ओमेगा टी की लोअर लिमिट 0, ओमेगा टी की अपर लिमिट 2 पाई। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी इज माइनस कोस टू ओमेगा टी ओवर 2, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई, तो ये कोस ओमेगा टी की जगह 2 पाई कोस 4 पाई माइनस कोस 0, कोस 4 पाई इज 1, कोस 0 इज 1, तो अल्टीमेटली 1 माइनस 1 इज 0। कहने का मतलब जो मैंने डिटेल पहले वर्ड्स में ब्रीफ में लिखा था उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। तो आंसर जो एवरेज वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर जो है टाइम एवरेज जो है दैट इज 0। तो चूंकि आंसर 0 ही आना है, और ये वेक्टर बी है, और वेक्टर बी जो है दैट इज वेक्टर बी जो है दैट इज क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर आप कहेंगे कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच होता है, या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी ओवर म्यू जीरो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे म्यू जीरो आना चाहिए, यहाँ म्यू जीरो, यहाँ पे म्यू जीरो है, म्यू जीरो इज कांस्टेंट, अल्टीमेट आंसर जो है वो अल्टीमेट आंसर तो 0 ही आना है, तो एक म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए मैं बाद में ये म्यू जीरो, यहाँ पे म्यू जीरो, और यहाँ पे म्यू जीरो, और यहाँ पे म्यू जीरो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 into finite is 0। So thank you so much.